my YouTube channel Learn with Dr. Salman. मेरा नाम है मोहम्मद सलमान शम्सी and welcome to you to this video lecture of financial derivatives. आज हम बात करने वाले हैं forwards and futures के बारे में. As you all know, forward और future derivatives हैं जो quite similar हैं. People get confused in them because they are quite similar, but they are not the same. They are different. अगर आप by definition देखेंगे, so they are quite similar, but yet they are different. So in today's discussion, in today's video, we are going to talk about what forwards are, what futures are, and then in the last, we are going to conclude this video by discussing the brief difference between forward and future. So stay tuned till end to find out the whole picture of forward and future. So to start with, let's talk about forwards first. Forwards क्या है? So if you see the definition of forwards, forwards are basically those contracts which are between two parties, which are known as counterparties. So forwards are a contract between two parties to buy or to sell an underlying asset at a predetermined date and at a pre-specified price. So बहुत सिंपल सी बात है, जो कि अंडरलाइंग असेट है जिसके ऊपर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, उसको बाय या सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट है एट अ फ्यूचर डेट. एक फ्यूचर डेट, सपोज आज से 3 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सेल या परचेज ये आज से 3 महीने बाद होगी एंड एट व्हाट प्राइस इट विल टेक प्लेस, जो प्राइस आप आज डिसाइड करोगे. सो फॉरवर्ड्स आर बेसिकली दोज कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच द टाइम ऑफ डिलीवरी, द टाइम ऑफ द ट्रेड, the price of the trade, both are predetermined at the time when you enter into the contract. So these are basically those contracts which give you a specified price for future. तो आपको एक तरीके की प्राइस गारंटी मिल रही है फ्यूचर की. This can be beneficial also, this can be lossful also. अगर आपने 3 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक स्पेसिफाइड प्राइस का, और सपोज एट दैट पर्टिकुलर टाइम प्राइस ज्यादा हुई, आपने सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट करा है कम प्राइस पर, तो आपका लॉस हो जाएगा. बट इफ द प्राइस इन द मार्केट इज लो और आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हाई है, उस केस में आपका प्रॉफिट है. नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रेड, दीज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड थ्रू ओवर द काउंटर मैकेनिज्म. दैट मीन्स दे आर ट्रेडेड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एक्सचेंज. कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है. जैसे होता है ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है. दीज आर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स. दैट मीन्स टू पार्टीज हु आर इन्वॉल्व इन टू अ ट्रेड, या फिर जो दोनों एक सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन में हैं, दे कैन एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दे कैन फाइंड देमसेल्फ अ सुटेबल पोजिशन. So these are over the counter traded. That means they are very much customized, or let's say they are tailor made contracts. So as per the needs of the parties, जैसा कि parties की needs है, they can frame the regulations, they can frame the conditions of the contract, and they can enter into a contract, into a forward contract. So if we talk about these contracts, they are very private contracts. तो suppose एक party है इंडिया में, उसको पेमेंट करना है यूएस के किसी पर्सन को. ऑल राइट, सो फॉर दैट ही नीड्स यूएस डॉलर्स. तो आफ्टर 3 months पेमेंट करना है, एंड इफ यू सी द प्राइस ट्रेंड, द इंडियन नेशनल रूपी इज डेप्रिशिएटिंग. दैट मीन्स व्हाट्स हैपनिंग, डॉलर महंगा हो रहा है इंडियन नेशनल रूपी के लिए. पहले आपको 70 देना था, 72 देना है, हो सकता है 3 महीने बाद आपको 75 या 78 देना हो डॉलर खरीदने के लिए. सो व्हाट कैन दिस पर्सन डू? This person who has to pay the money to a US partner, he can enter into a forward contract to get a guaranteed price. कि ठीक है, after 3 months I will buy dollar at 74 rupees. अब अगर मार्केट का रेट 3 months के बाद 75 हुआ, तो पर डॉलर 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा इस पर्टिकुलर पर्सन को. बट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज प्योरली प्राइवेट, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज प्योरली कस्टमाइज्ड. So with whomsoever party he is entering into contract with, उसके साथ इसके जो भी terms and conditions होंगे वो personal terms and conditions होंगे. And I just gave you an example of currency. जरूरी नहीं है सिर्फ currency में हो. Forward contracts can be in terms of commodity also. Gold, silver, cardamom, copper, बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे, commodities पे भी बेस्ड होता है हमारा forward contract.
Apart from that, there can be interest rates also on which forwards can be based on. तो इंटरेस्ट पे करना है, हो सकता है ज्यादा हो जाए तो आप क्या करोगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. बट यू विल सी दैट कॉमनली दीज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन करेंसी एज वेल एज कमोडिटी. तो करेंसी और कमोडिटी ये दो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले अंडरलाइंग असेट्स हैं फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. Now, if we talk about the common features of forward contract, तो सबसे पहला तो यही है कि there should be two parties, एक कॉन्ट्रैक्ट बायर, एक कॉन्ट्रैक्ट सेलर. एक पार्टी जो कि प्रॉमिस कर रही है दूसरी पार्टी को दैट ओके वील कन्वर्ट दिस मनी एट दिस रेट, और दूसरी पार्टी जो कि प्रॉमिस कर रही है दैट आई विल गेट इट कन्वर्टेड ऑन दिस डेट. तो कोई भी बैक ऑफ सिचुएशन नहीं है. ऑन द ड्यू डेट अगर आपको लॉस भी हो रहा है बट स्टिल यू हैव टू अबाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि आई विल बाय $US आफ्टर 3 months एट द रेट ऑफ 74 रुपीज. अब 3 महीने के बाद प्लीज नोटिस कि 3 महीने के बाद अगर प्राइस 74 से नीचे आती है तो दैट मीन्स नॉर्मली मैं बाय करूं मार्केट से तो मुझे सस्ता पड़ेगा, बट बिकॉज आई एम इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट I have to necessarily buy it at 74 only. तो मेरा यहाँ ₹2 पर कॉन्ट्रैक्ट का लॉस हो गया अगर मार्केट में 72 है रेट. सिमिलरली जो मेरा सेलर है जिससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इफ सपोज मार्केट का रेट है 76 और उसका कॉन्ट्रैक्ट मुझसे हुआ है 74 का, तो वो चाहेगा कि मार्केट में बेचे ताकि उसका प्रॉफिट हो. बट बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही हैज टू डिलीवर दोज डॉलर्स टू मी एट द प्राइस मेंशन इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस है उसी प्राइस पे वो मुझे डिलीवर करेगा, नो मैटर कि उसका लॉस हो रहा है. सो देयर विल बी ऑलवेज अ सिचुएशन वेयर वन पार्टी विल बी मेकिंग प्रॉफिट व्हाइल अदर पार्टी विल बी एट द लॉस. देयर कैन नेवर बी अ विन-विन सिचुएशन व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरवर्ड्स. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन फॉरवर्ड इज दैट द प्राइस एंड द वॉल्यूम, दीज टू थिंग्स रिमेन कांस्टेंट टिल द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. आपने जो भी प्राइस फिक्स किया है, जो भी वॉल्यूम फिक्स किया है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, दैट विल रिमेन कांस्टेंट मैच्योरिटी के टाइम तक. ठीक है, बीच में मार्केट के साथ कुछ भी हो, मार्केट अप जाए डाउन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द कॉन्ट्रैक्ट विल बी टेकन ऑफ एज इट इज बिकॉज इट इज अ प्री डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट. एंड यूजुअली दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूज्ड फॉर हेजिंग. हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग मीन्स बेसिकली safeguarding yourself from some specific risk. Hedging क्या है? कोई भी रिस्क से अपने आप को सेफगार्ड करना. और you can say hedging is basically that strategy through which you reduce your exposure from the underlying risk. तो करेंसी की अगर हम बात करें, जैसे हम अभी बात कर रहे थे फॉरेन करेंसी की, तो फॉरेन करेंसी में रिस्क क्या है? फ्लक्चुएशन से रिस्क है. तो एडवर्स मूवमेंट हो जाता है. अगर आपको जो करेंसी खरीदनी है वो महंगी हो गई, ये रिस्क है. इस रिस्क के बचने के लिए आप कम प्राइस पे फॉरवर्ड पे एंटर करते हो, दैट मींस यू आर हेजिंग अगेंस्ट द रिस्क. सिमिलरली कमोडिटी रिस्क भी होते हैं. भाई आप एक पर्टिकुलर कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो एंड यू सी दैट आफ्टर 3 months उसकी प्राइस कम हो जाएगी मार्केट में, दैट मीन्स यू विल बी हैविंग लॉस. तो आप उसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो एक स्पेसिफाइड प्राइस पे, so that you can basically save your losses. Then the information of these contracts, of these forward contracts, they are completely personal. क्योंकि दो पार्टीज के बीच का एक टेलर मेड कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है. So the information related to these contracts is not available publicly. तो स्टॉक एक्सचेंज पे या फिर किसी भी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे जरूरी नहीं है इस इंफॉर्मेशन को दिखाएं. दिस इज कम्प्लीटली प्राइवेट, दिस इज कम्प्लीटली पर्सनल. बट देर आर रिस्क इन्वॉल्व इन दिस बिकॉज ऑन बोथ द साइड्स देर आर इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व. नो एक्सचेंज इज इन्वॉल्व इन बिटवीन. जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इट इज बिटवीन द टू पार्टीज विदाउट एनी रेगुलेशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. तो यहाँ पर डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होता है. देयर कैन बी सिचुएशंस व्हेन दीज पार्टीज मे डिफॉल्ट. एक पार्टी हो सकता है डिफॉल्ट कर जाए कि नहीं मुझे नहीं खरीदना, मेरे पास पैसे नहीं है. दूसरी पार्टी हो सकता है डिफॉल्ट कर जाए कि आई एम नॉट हैविंग द पर्टिकुलर कमोडिटी, मैं डिलीवर नहीं कर सकता. सो दीज टाइप ऑफ रिस्क आर बेसिकली इन्वॉल्व इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. सो दीज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर, एज आई सेड, आर टेलर मेड, आर फिक्स्ड टिल मैच्योरिटी,
are specified for the date of maturity and are specifying the price at which they are getting matured, and they create strong obligation on the parties involved कि उनको मीट आउट करना ही है टर्म्स एंड कंडीशंस को एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नो मैटर व्हाट द मार्केट सिचुएशंस आर. And yet there are default risks involved because there is no stock exchange involved in between. Trade directly parties के बीच में हो रहा through over the counter trade. Now let's talk about futures. Forward तो समझ में आ गया. अब फ्यूचर क्या है? भाई फ्यूचर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो भी सेम है कि फ्यूचर्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स which involve buying or selling of an underlying asset on a predetermined date at a predetermined price. भाई डेफिनेशन सेम है, क्या हो गया ये? No, they are different. As I said, forwards are basically those contracts which are custom made, which are tailor made, which are customized as per the needs of the parties. लेकिन फ्यूचर्स ऐसा नहीं. फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. बेसिक नेचर दोनों का सेम है कि एक अंडरलाइन असेट है, उसकी बाइंग सेलिंग चल रही है, एक फ्यूचर डेट पे होनी है बाइंग सेलिंग, ट्रेड जो होगा फ्यूचर डेट पे होगा और प्राइस भी आज ही तय हो गया है उसका. बेसिक नेचर सेम है दोनों का, बट फॉरवर्ड्स कस्टमाइज्ड है, फ्यूचर्स स्टैंडर्डाइज्ड. अब ये सिर्फ स्टैंडर्डाइज्ड होने से पता है बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं. Like I said that these are standardized, so that means they have to be traded through stock exchanges. Future contracts over the counter trade नहीं होते. Future contracts parties आपस में खुद नहीं बना सकते. So the party who want to enter into a buying or selling of something through futures contract, they have to get the contract through specified stock exchange. The National Stock Exchange है, Multi Commodity Exchange है. You have to use those stock exchanges if you want to get into the trade of futures contract. So there is National Stock Exchange, there is Multi Commodity Exchange for commodity exchanges, and so on. So these stock exchanges are basically responsible for the trade between two parties related to future contracts. Now when we say that these are standardized contracts, these are traded through exchange, what do we mean? हम क्या मतलब निकाल सकते हैं इसका? इसका सबसे बड़ा मतलब तो ये निकाल सकते हैं कि पार्टीज अपने टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स नहीं कर सकती. दे हैव टू फॉलो दोज रेगुलेशंस, दोज टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर सेट बाय द एक्सचेंज. अब उसमें प्राइस भी है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज भी है, उसमें द डेट ऑफ मैच्योरिटी भी है. सारी चीजें किस तरीके से काम करेंगी जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज ने स्पेसिफाई कर दिया. Now another thing to note about futures is that they can be drawn upon foreign exchange. भाई futures foreign exchange पे depend कर सकते हैं. That means there can be future contract related to different currencies of different countries. There can be future contracts based on different commodities. There can be future contracts based on stock market index. Stock market index क्या होते हैं? जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी है. Basically they are dependent upon a bunch of different stocks which are listed on that particular stock exchange. Now talking about some common features or characteristics of futures market, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इनकी प्राइस जो है वो डेली फ्लक्चुएट होती है. Well, as we saw in forwards में क्या होता है, एक प्राइस फिक्स होगी, मैच्योरिटी तक वही रहेगी. But in future contracts, the daily marking to market has to be done, which is known as mark to market daily. So futures जो है daily mark to market होते हैं. इसका मतलब क्या है कि जो daily price movements है मार्केट के, उसके बेसिस पे फ्यूचर्स की वैल्यू डेली फ्लक्चुएट करती है. अब ये फ्लक्चुएशन कैसे मीट आउट होगा? ये फ्लक्चुएशन मीट आउट होगा विद द हेल्प ऑफ द मेंटेनेंस मार्जिन अकाउंट. ये एक और अनूठा, और यू जस्ट से दैट इट इज वन ऑफ द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ futures account, that there have to be maintained a maintenance margin account. Maintenance margin account क्या होता है? ये जो डेली सेटलमेंट होता है ना, डेली प्राइस मूवमेंट है, फ्लक्चुएशंस है, उसके डिफरेंसेस सेटल किए जाते हैं थ्रू द मेंटेनेंस मार्जिन अकाउंट. तो अगर प्रॉफिटेबल सिचुएशन है वो अमाउंट मेंटेनेंस अकाउंट में आ जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा लॉस हुआ है तो वो मेंटेनेंस मार्जिन अकाउंट से कट जाएगा. Remember, this whole amount is not being deducted or added, only the margins
the slight fluctuations are added or subtracted from the maintenance margin account. Unlike the forwards में तो एक जो फिक्स हो गई and then the use of these future contract is mostly for hedging and speculation. भाई फॉरवर्ड तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हेजिंग के लिए यूज हो रहे हैं, दैट मीन्स रिस्क को बचाने के लिए यूज हो रहे हैं. बट फ्यूचर्स जो हैं ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो ये आराम से बिक भी जाते हैं. दे कैन बी ट्रेडेड इजीली इन द स्टॉक मार्केट. सो विद दिस फीचर दे आर वेरी लिक्विड, दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इजीली. फ्यूचर्स बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं. मेरे पास फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, मैं बायर हूं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का, तो easily I can sell it into the stock exchange through stock exchange and get money in its place. तो ये speculation के लिए भी यूज हो जाते हैं, क्योंकि the daily movement of prices can be used for profit earning using future contract. Now another important thing about futures is that the publicly available information. Forwards में क्या था? Private contract थे, customized थे, tailor made थे, पार्टीज के ओन नीड्स पे डिपेंड करते थे, इसलिए प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी वही. बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स. इनकी प्राइस, मैच्योरिटी डेट, इनके लॉट साइज, एवरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग दिस अंडरलाइंग असेट और एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रीली अवेलेबल टू द मार्केट ट्रेडर्स. तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इट कैन बी आस्क्ड टू यू मल्टीपल चॉइस में या इंटरव्यू में के through which medium this information is shared. So mainly this information about the futures contract is shared through stock exchange. अलग अलग तरीके हो सकते हैं. एनुअल रिपोर्ट हो सकती है, there can be analyst report, there can be different type of reports, news which are published. Then another important thing to note in futures is that futures are backed by clearing house. Forwards में counterparty risk बहुत high था. Parties can default. हो सकता है पेमेंट ना दे, हो सकता है डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट ना हो. ऑलराइट, देयर कैन बी डिफरेंट डिफॉल्ट सिचुएशंस, बट इन फ्यूचर्स देयर हैव टू बी रिड्यूस्ड डिफॉल्ट. तो ये थोड़ा ज्यादा सिक्योर्ड है बिकॉज दे आर बैक्ड बाय क्लियरिंग हाउस. क्लियरिंग हाउस क्या होता है? क्लियरिंग हाउस आर बेसिकली दोज बॉडीज विच आर लिंक्ड टू द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड दोज वर्क फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन. तो अगर पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है तो उसके बिहाफ पे क्लियरिंग हाउस ठीक है मीट आउट कर लेगा जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बट इट विल सी द पार्टी हु हैव डिफॉल्टेड. तो जो भी पार्टी ने डिफॉल्ट किया उसके ऊपर फाइन, पेनल्टी, सजा वजा जो भी होनी होगी वो विद अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी हो जाएगी. बट द मेन थिंग टू नोटिस हियर इज दैट दीज आर मोर सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज दीज आर बैक्ड बाय द क्लियरिंग हाउसेस. सो टू सम अप, एक हम इसका जिस्ट निकालें तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेसिकली दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर स्टैंडर्डाइज्ड, विच आर ट्रेडेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस, विच आर मोर लिक्विड देन फॉरवर्ड्स, एंड दीज फ्यूचर्स आर लेस रिस्की, मोर सिक्योर्ड, and they are traded through stock exchange, so they are easily transferable also. Now talking about the differences, हमने इनके मीनिंग समझ ली, हमने इनके फीचर्स समझ लिए. अब बात करते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या है. तो मेन डिफरेंसेस पे अगर देखें, सबसे पहला डिफरेंस तो ये आ जाता है कि फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, फॉरवर्ड्स आर कस्टमाइज्ड और टेलर मेड. ठीक है, अब दूसरे डिफरेंसेस की तरफ चलते हैं. अब कस्टमाइज्ड है फॉरवर्ड, यानी कि उनकी प्राइसेस भी फिक्स होंगी पार्टीज के थ्रू. सो द प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय द पार्टीज बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल. ये क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के बारे में. अभी हमें ये समझना होगा कि प्राइसेस ऑफ फॉरवर्ड्स आर फिक्स्ड बाय द पार्टीज बेस्ड ऑन द मार्केट एंड इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, एंड प्राइसेस ऑफ फ्यूचर्स आर बेसिकली फिक्स्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंजेस. Another point to note down here is the size of the contract. Contract size is basically dependent. Contract size is basically fixed by stock exchange in terms of futures, but in terms of forwards, the contract size is fixed by the parties themselves. रिस्क की बात करें तो फॉरवर्ड्स में रिस्क ज्यादा है, काउंटर पार्टी रिस्क, बट इन फ्यूचर्स रिस्क इज वेरी लेस, दे आर काइंड ऑफ सिक्योर्ड. फॉरवर्ड्स आर traded through over the counter market, however futures are traded through stock market. Stock exchange के through trade होगा, secure trade होगा. Alright, then we can say about the prices.
एक फिक्स प्राइस डिटरमाइन हो जाती है फॉरवर्ड्स में, बट इन फ्यूचर्स marking to market has to be done on daily basis, and so settlement also takes place on the daily basis. Another important difference between forwards and future is the presence of margin amount. Forwards पे कोई margin का चक्कर नहीं होता है. You just enter into a contract, due date पे you meet out the terms and conditions, finished. But when we talk about futures, they are entered by paying an initial margin amount. And this initial margin is a proportion of whole contract amount. तो कॉन्ट्रैक्ट अगर $1 million का है तो आपको $1 million लेके नहीं जाना है. You just have to pay a small proportion. जो भी proportion फिक्स होगा वो एक small proportion आपको पे करना होगा, जिसको हम कहेंगे इनिशियल मार्जिन. ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट एक मेंटेनेंस मार्जिन मेंटेन होगा हमारा किसमें, फ्यूचर्स में. दिस मेंटेनेंस मार्जिन इज मेंटेन्ड to meet out the daily fluctuations or market movements. Then talking about the liquidity, futures are more liquid, forwards are less liquid, or you can say forwards are not liquid because there is very negligible kind of liquidity in forward contracts. Then a very important thing is about the settlement of these contracts, the final settlement. Forwards में usually settlement होता है specified delivery से. जो भी आपकी अंडरलाइंग असेट है उसकी डिलीवरी और उसकी पेमेंट रिसीव होगी, बाइंग सेलिंग जो भी होना है, दैट विल टेक प्लेस इन फॉरवर्ड्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. बट इन फ्यूचर्स देयर आर कैश सेटलमेंट्स ऑल्सो. कैश सेटलमेंट क्या है? सपोज आई एंटर्ड इनटू अ गोल्ड रिलेटेड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो मैच्योरिटी के टाइम पे जरूरी नहीं है मैं गोल्ड बाय करूं. इट कैन हैपन कि जो भी जिस प्राइस डिफरेंस है मार्केट में और हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में, हम उस डिफरेंस को एक्सचेंज कर लें. जिसका प्रॉफिट हो रहा है उसका प्रॉफिट हो जाएगा, जिसका लॉस हो रहा है उसका लॉस हो जाएगा. सो दैट्स ऑल अबाउट फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स. एक और मेन चीज फॉरवर्ड फ्यूचर की ये है कि देयर आर सिचुएशंस ऑफ विन लूज. एक पार्टी विन करेगी, एक पार्टी लूज करेगी. देयर कैन नेवर बी अ सिचुएशन ऑफ विन विन इन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर. सो विद दिस आई एम इन अ पोजिशन टू वाइंड अप टुडेज डिस्कशन. हम यहाँ पर विराम लगाते हैं और आई होप थिंग्स आर क्लियर. बहुत कुछ बातें हुई, बहुत ब्रीफ में करी हमने, बहुत डिटेल में नहीं गए हैं. तो इफ यू नीड एनी डिटेल्ड इंक्वायरी अबाउट एनी ऑफ दिस टॉपिक, आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन पोस्ट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और you can mail me at my email address, which is shamsi.sam@gmail.com. Thank you for listening. I hope things are clear. And if you like the video, please like, subscribe and share with your peers. Thank you so much.